that we have to explore the errors and exception, recognize the exception handle and categories, and use the multi-catch clause and use the throw clause. Okay, so basically we have to cover the exception handling. So before going to discuss about the exception handling, first you have to know when you write a program, how many type of error will come in your program. So there is three type of error will come. So when you write a program, so first of all we have to follow the three type of errors. The first is syntax error, logical error, another is runtime error. So while writing a program, you have to face the three type of error. One is syntax error, logical error, or another is runtime error. So three type of error we will found. So now, what is the syntax error? Syntax error means when keywords are misspelled, punctuation is omitted. Keywords like in place of suppose capital system, if you write small system, punctuation is omitted. If you mistake the semicolon after writing a statement, if you are not giving semicolon, then that is called as a what you can say it is a syntax error. Next is we go for logical error. In logical error, your program is correct, it is compiled and executed successfully, but it doesn't give the desired output. It means what? Suppose I have to write a code to check whether the two numbers are equal or not. Between the two numbers, which number is greater or which number is smaller. So if I write if, so in that scenario, you have to pass two different value. मुझे दो जो नंबर है दो नंबर से कुछ ऐसा एक नंबर में निकालूंगा जो ग्रेटर होगा. तो यहाँ पर हम दो आउटपुट लेंगे, दो इनपुट लेंगे. जो दो इनपुट
अलग अलग वैल्यू होना चाहिए, तभी जाकर उसमें से जो वैल्यू ग्रेटर है वो हमको दिखाएगा. इफ यू आर पासिंग the same value, so at that time we're not giving any kind of condition to check for the equality. I have mentioned is mentioned what I define here: a greater than b, then suppose a is greater or else b is greater. In between you have to search for only one statement. But if I pass the two equal value, then what happens? It doesn't give the any kind of output. So that thing is called as, you can say, it is a logical error. Your program is correct, syntax is correct, but it doesn't give the desired output. So here, what to write? The program is compiled executed doesn't give the desired output. Next is runtime error. Runtime error is what? The program is compiled successfully, but at the time of execution it shows an error. The program is compiled successfully, but at the time of execution it shows an error. It's showing that the program is compiled successfully, but time of execution it shows an error. It is called as the runtime error. First is syntax error, logical error, another is runtime error. Next, all the errors or all the exception, it comes from the runtime error. Exception means what? We're not expecting that kind of error or situation comes to my program, but it is automatically comes. We're not expecting that is happened with my program, but automatically it comes to my program. When you are driving, you are not expecting your bike be punctured, but when the situation is happened, so that is called the runtime error. We're not expecting any problem that is coming to your laptop. Suddenly it asks from some update, suddenly it is restarted. So that kind of situation is called as a runtime error. Means we're not expecting that is happen with us, then it is happened. We're trying to open a file, but the file is not present.
when we're transferring the money at the time my internet pack is over. You can say it is just like a runtime error. Okay, so now this exception or exception is what? Now it is a type of error which is happen at runtime. Error is what? Now error handled to create a reliable application. It result of application box. It beyond the control of your application. But exception is an error that occurs at runtime. It gives the abnormal behavior and leads on predictable result. You are not predicting that kind of error will come, but it is disrupts your program, disrupt the normal flow of your application. समझ में आया अभिमन्यु ये दोनों एरर एंड एक्सेप्शन? यस सर। सर मैं बोल रहा था कि जैसे कि हमें और भी एरर्स आते हैं ना, जैसे इंडेंटेशन पे एरर आते हैं, टाइप एरर आते हैं, तो वो सब एरर्स किस क्लास में होते हैं, उसे कैसे डिफाइन करते हैं? वो तो आपका एक्सेप्शन में जाएगा. टाइप एरर मतलब सपोज आप एक नंबर को डिवाइड कर रहे हो. So after dividing a number, if you divide 10 by 2, then you are expecting the 5 will come. It is good so that we define the 3 integer variable. So if we define 3 integer variable and we define 10 by 3, your result will come 3.33. But that 3.33, that fractional value, so that fractional value cannot be stored into integer. For storing this fractional value, we require what? A float value. But here that kind of, as we define int, then that point value is miss. So that we need to convert this fractional value, as it is stored in the integer, so we need to convert this integer to float. If you are not converting, then you are not getting a result. So what the value you are expecting, that value you are not getting over there. Is it clear? Yes sir. So now comes to this point, all error and exception that comes from throwable. Throwable is a base class for all predefined error and exception. So from the throwable, error has comes and exception has come. In exception, it contains a runtime exception, SQL exception, IO exception. In runtime exception, it has arithmetic exception, file not found exception. Java.lang.throwable class, it is used for all predefined exception. Next is we have unchecked exception. The types of unchecked exception is what? Like java.lang.runtime exception, java.lang.error. It occurred during the execution of the application. It discovered by using the try and catch statement. Exception
is what? Like it is a unchecked exception, another is checked exception. Here it is defined. Unchecked, then checked. Checked is what? Suppose now the rain season is going on and you are at your home, and when you go out, your mother is ensuring that you have taken the raincoat or not. And the mother is asking you or telling you that you have to take the raincoat as because it is having heavy raining or it is a rainy season. Unchecked exception is what? You are not checked. आप सोचोगे हाँ मेरा पास अगर डिक्की में पड़ा होगा रेनकोट देन गुड, पहन लेता हूँ, अगर नहीं है तो नहीं है. आई एम नॉट चेकिंग while go to the outside. I am not checked over there. मेरे पास है कि नहीं मुझे पता नहीं. अगर है तो अच्छा है, तो मैं चेक पहन लूंगा तो मैं बच जाऊंगा. अगर नहीं है तो मुझे बारिश में भीग कर जाना पड़ेगा. चेक्ड में क्या होता है? बिफोर मूविंग आई विल चेक इट इज देयर और नॉट. जैसे क्या होता है, आप रेलवे स्टेशन में उतरते हो, फ्लाइट से जब उतरते हो आपका एक टेस्ट होता है, टेम्परेचर टेस्टिंग वो करते हैं. बीच में क्या हुआ वो टेस्टिंग नहीं था. एनीबडी कैन गो एंड आउट. सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड द अनचेक्ड एंड चेक्ड. चेक का मतलब है वो चेकिंग होकर जाएगा. अनचेक का मतलब है हम चेक नहीं करते हैं. it doesn't mean the exception is not checked, but it is not compulsory. आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो. एक चीज मान लो, सपोज जब कॉलेज ओपन होगा, कॉलेज में गाइडलाइन होगा दैट everybody is passed with the RT-PCR, then you are allowed to go for physical classes. ऑन चेक का क्या होता है? अगर घर में रहते हो, आपका टेम्परेचर आता है, आपका मर्जी हो, करो नहीं करो. अगर बहुत ही बुरा लग रहा है, देन तबियत अच्छा नहीं है, देन यू गो फॉर द. तो दैट इज ऑन चेक. चेक का मतलब क्या है? आपको चेक करना ही करना पड़ेगा, रिपोर्ट दिखाना ही दिखाना पड़ेगा. इट इज रूल्स. पर ऑन चेक में क्या होता है? इट इज डिपेंड अपॉन यू. मैं फॉलो कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, लेकिन करने से अच्छा वो. So your exception is divided into the two category. One is unchecked, another is checked. Clear? Yes, sir. In unchecked exception, what are the unchecked exceptions are present? Java.lang.runtime exception and error. Those are the error. It is extends from error and runtime exception is called unchecked exception. Checked exception is what? The exception except the runtime exception is called as the checked exception. मतलब ये अनचेक्ड एक्सेप्शन को छोड़कर और जितना एक्सेप्शन है वो सब चेक्ड एक्सेप्शन में चलेगा. इसमें क्या होता है? चेक्ड में हम ट्राई कैच यूज करते हैं. अनचेक्ड में क्या होता है ना, हम सिर्फ ट्राई ब्लॉक यूज करते हैं.
देन ट्राई एंड कैच क्या है? ट्राई ब्लॉक गार्ड्स योर प्रोग्राम. It will check whether the exception is arises in your program or not. Try block guards the statement, प्रोटेक्ट करता है. सपोज आप 100 लाइन्स का कोड लिखे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका जो एक्सेप्शन है वो 50 से लेकर 80 नंबर ऑफ लाइन में आ सकता है. तो आप क्या करोगे ना, 50 से लेकर 80 तक जो लाइन से हम इसको ट्राई ब्लॉक में डाल देते हैं. तो ट्राई ब्लॉक इज गार्ड्स योर प्रोग्राम, and if your exception is arises, then it is handled. Okay, and catch block contain the parameter which contain the exception class name. कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है वो कैच ब्लॉक में रहेगा. बारिश के दिन हमारा जो एक्सेप्शन पैरामीटर है कैच ब्लॉक में वो हैंडल करेगा क्या ना, रेनकोट. सर्दी के दिन स्वेटर एंड जैकेट हम यूज करते हैं उससे निकलने के लिए. तो catch block is used to retry the operation and it provide an alternate operation. And it is used to gracefully exit, not abnormally close. You can gracefully exit from the exception. इसका मतलब क्या है? कैच ब्लॉक, यहां पर मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं. पहले हम एक ट्राई ब्लॉक डिफाइन करते हैं. ट्राई ब्लॉक के अंदर एक डिफाइन करते हैं कैच ब्लॉक. तो जितना सारा कोड है जहां पर हमारा एरर आ सकता है वो सब हम ट्राई ब्लॉक में डिफाइन करेंगे. और जो कैच ब्लॉक है यहां पर हमारा एक्सेप्शन रहेगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग पैरामीटर. मे बी अगर आप एरिथमेटिक रिलेटेड चीज हैंडल कर रहे हो तो यहां पर डिफाइन होगा एरिथमेटिक एक्सेप्शन, ऑब्जेक्ट हो गया ई. तो आप जो गाइड्स दोगे प्रोग्राम को, वहीं पर आपका चेकिंग, वो लाइन सब चेकिंग होगा.
The next is कैच ब्लॉक, जो यूज होता है, इट इज यूज फॉर retry the operation. It is used to give a alternate operation. It is must not be empty and it get the reference from java.lang.exception object. समझ में आया ट्राई एंड कैच ब्लॉक अभिमन्यु? व्हाट इज द वर्क ऑफ ट्राई सर एंड कैच? कंप्लीटली नहीं है। हाँ, नहीं सर, सर बोल रहा था कि वो उसमें मतलब हमें पता कैसे चलेगा कौन सा एक्सेप्शन मतलब कैसे हैंडल करना है, वो आप बोल रहे थे हमें वो एक्सेप्शन डिफाइन कर देना होगा कैच ब्लॉक में, ये हाँ, एक्सेप्शन है। जैसे कि क्या होता है, देखिए तो मुझे समझ में कैसे है। रियल लाइफ में क्या होता है, अगर हम बारिश के दिन है तो हम रेनकोट और अम्ब्रेला यूज करेंगे, तो वी नो दैट वी हैव टू हैंडल इट। गर्मी के दिन पर हमारा एक्सेप्शन हैंडल क्या होगा ना, हम ठंडा पानी पिएंगे, शरबत पिएंगे, लस्सी पिएंगे। तो सिमिलर वे, डिपेंडिंग योर ऑपरेशन यू हैव टू एक्सपेक्ट का मतलब नहीं है आपको मतलब सारा चीज करेक्ट होगा, नहीं भी हो सकता है। तो आपको पर्टिकुलर एक्सेप्शन क्लास उसके हिसाब से डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपको स्पेसिफिक एक्सेप्शन का नाम पता नहीं है, अरिथमेटिक फाइल इनपुट आउटपुट करने के लिए आईओ एक्सेप्शन एक डिफाइन किया जाता है। अगर आप डेटाबेस कनेक्टिविटी करोगे एसक्यूएल एक्सेप्शन डिफाइन किया जाएगा। So if you are not sure about that, what type of exception will come, then in that cases you have to define only exception. Exception is a class for all predefined exception. जितना सारा एक्सेप्शन क्लास है उसका जो बेस क्लास है एक्सेप्शन है। अगर आपको पता नहीं है कौन सा एक्सेप्शन आपको डालना है, बस एक्सेप्शन डाल दो, ऑब्जेक्ट ई क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा पर्टिकुलर एक्सेप्शन के साथ। एक्चुअली कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है तो आप इसको चेंज अगेन कर देना। क्लियर, समझ में आया? हाँ सर। तो सर एक्सेप्शन तभी आएगा ना जब हमें कुछ मतलब हमारे कोड में कुछ एरर टाइप हुआ तभी आता है एक्सेप्शन। हाँ, तभी आता है। मतलब ऐसे जनरली एक्सेप्शन आ सकते हैं। हाँ, एक्सेप्शन नहीं आने के लिए कुछ कोड को भी ट्राई ब्लॉक में डालना पड़ता है। अगर ट्राई ब्लॉक में नहीं डालोगे एरर आएगा। जैसे कि हमको पता नहीं हमको कोविड होगा कि नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमको ट्राई ब्लॉक में डालना पड़ रहा है। वो ट्राई ब्लॉक क्या है, वैक्सीनेशन। अगर हमको कोविड पकड़ता है तो कैच ब्लॉक उधर होता है, तो भाई ये वैक्सीनेटेड है, तो हमको क्या करेगा ना, हायर डिजीज के लिए और नहीं ले जाएगा। तो इट इज प्रोटेक्ट आवर बॉडी। ट्राई ब्लॉक इज वर्क लाइक वैक्सीन एंड कैच ब्लॉक इज हैंडल दैट एरर। अगर कोविड आता है, देखता है हाँ ये कोविड है, बस इसको निकालो। ओके, सपोज इस बॉडी में अगर जंडिस घुसने लगेगा, तो जंडिस के अगर वैक्सीन नहीं लेंगे वो आराम से घुस जाएगा, क्योंकि उसका वैक्सीन हम नहीं लिए। सो फॉर एवरी डिजीजेस द थिंग्स इज डिफरेंट। ओके, बट we're not expecting that kind of error will come, so that we put that all the core into the triangle. Okay, यस सर। general purpose of catch block, it cannot deal with every possible error, should not catch with the base type of exception. कोविड वैक्सीन आने से पहले हम ऐसा नहीं है कि हम वैक्सीन नहीं हुए हैं, हमको वैक्सीनेट नहीं कराया गया है। तो वी आर वैक्सीनेटेड फॉर पोलियो, वी आर वैक्सीनेटेड फॉर द हेपेटाइटिस बी, वी आर वैक्सीनेटेड फॉर द मीजल्स। ओके, तो जब एक छोटा बच्चा जन्म होता है तो उसका ईयर के हिसाब से, मंथ का हिसाब से जितना दे
वो टिकता है दुनिया में, मिनिमम स्टेजेस के लिए उसको एक एक वैक्सीन दिया जाता है, बीसीजी, ईसीजी, डीपीटी, booster 1, DPT, booster 2. So these are the booster and vaccine has given. बूस्टर क्या करता है ना, वो वैक्सीन को और थोड़ा ज्यादा एक्टिव करा देता है। लेकिन जो वैक्सीन हमने लिए हमारा चाइल्ड एज के थ्रू में टाइम पर, वो वैक्सीन क्या कोविड को रोक सकता है? आंसर इज so that vaccine is not capable to handle all the type of exception, so that it is not possible for a single try block, if you have mentioned only one catch block, it is not handle all the type of exception. एक ही कैच ब्लॉक सारा एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर सकता है। तो मल्टीपल एक्सेप्शन करने के लिए, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमको सेपरेट सेपरेट कैच ब्लॉक डिफाइन किया जाएगा। तो जब आप सेपरेट डिफाइन करोगे तो आप एक सिंगल ट्राई ब्लॉक के लिए आप मल्टीपल कैच ब्लॉक को डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर ए सिंगल ट्राई ब्लॉक you have to define multiple catch statement. तो मल्टी कैच अगर हम डिफाइन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम भी लेंथी हो जाएगा। ट्राई, कैच, 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 ऐसा अगर हम वर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सपोज 50, अगर मेरा 100 लाइन है तो मैं 50 और 80 लाइन को गार्ड में डालूंगा, तो वही 30 लाइन में मैं अगर मोर देन वन एक्सेप्शन एक्सपेक्ट करता हूं तो मुझे मल्टी कैच ब्लॉक डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। एक कैच ब्लॉक है ओके। सो एक कैच ब्लॉक हो गया, फिर मैं और एक कैच ब्लॉक डालता हूं। फिर कैच, कैच, फिर आपको चाहिए फिर से कैच, फिर डालते रहो कैच ब्लॉक। जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना कैच ब्लॉक डालो। बारिश के दिन, जो सर्दी के दिन बीच बीच में बारिश भी होता है, तो हम रेनकोट भी लेते हैं, स्वेटर भी लेते हैं। तो इस तरह से ये यूज हम करेंगे।
अभी मुझे क्या करना है, मैं जो मल्टी कैच स्टेटमेंट यहां पर हम यूज कर रहे हैं, मल्टी कैच स्टेटमेंट, तो मल्टी कैच ब्लॉक को नहीं लिखकर हम और एक तरीका यूज करेंगे। ये तरीका क्या है? उसको हम पढ़ेंगे आगे, जस्ट आगे पढ़ेंगे। ये जो ट्राई एंड कैच के बाद एक ब्लॉक रहता है, अनदर ब्लॉक, इसको बोलते हैं फाइनली। फाइनली का मतलब क्या है? अगर हम नॉन टेक्निकल वर्ड में देखेंगे, फाइनली इज एट लास्ट। At last, what you have to do when there is a exception you will find. The finally block is a statement. If your exception arises, it is execute. If your exception is not arises, then also it is execute. ये क्या हो गया? अगर एक्सेप्शन आएगा तभी एग्जीक्यूट होगा, अगर एक्सेप्शन नहीं आएगा तभी भी एग्जीक्यूट होगा। एक सिचुएशन में डालता हूं, जब नॉर्मल मौसम होता है, अगर हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो इजीली वी मूव। सपोज एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मुझे 15 मिनट चाहिए, तो मैं 15 मिनट में मैं वहां पर आराम से पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर बारिश होता है और मेरे पास रेनकोट भी है, लेकिन फिर भी मेरा गाड़ी का रफ्तार कम होगा। फोर व्हीलर भी है लेकिन रफ्तार कम होगा, सो इट इज डिले फॉर अनदर 10 मिनट। तो हो गया यहां पर 30 मिनट। देन अगर मेरे पास रेनकोट भी नहीं है, मुझे बाइक से एक जगह से दूसरा जगह पर जाना है, बारिश जोर से हो रहा है, तो मुझे एक जगह पर ठहरना पड़ेगा जब तक बारिश कम नहीं हो जाता है और छूट नहीं जाता है, तभी भी मेरा लेट होगा। मुझे कहां पर जाना है, सपोज कोचिंग में जाना है या कॉलेज में जाना है या ऑफिस में जाना है, तो ये सारे सिचुएशन में मैं इन्फॉर्म करूंगा कि जी मेरा बारिश हो रहा है, तो आई विल बी लेट फॉर 10 मिनट। मतलब अगर बारिश हो रहा है, मेरे पास प्रिकॉशन भी है, तब भी मेरा लेट होगा। अगर मेरे पास प्रिकॉशन नहीं है, तभी भी मेरा लेट होगा। तो फाइनली ब्लॉक इज ए ब्लॉक if your exception arises, it is execute. If your exception not arises, then also it is execute. समझ में आया अभिमन्यु? Yes, sir. And then why were you using finally block? Finally block is a block which is used to close the open resource. ये open resource क्या है? Sometimes we are creating a object of class. We are creating a object of class in the main method. Then through the object, we are calling the functions or member of the classes. But some type of class object or classes are there which are predefined. कुछ यूजर डिफाइन होता है और कुछ प्री डिफाइन भी होता है। कुछ यूजर डिफाइन भी होता है और कुछ प्री डिफाइन भी होता है। यूजर डिफाइन क्या है? मैं एक क्लास डिफाइन किया, माई क्लास, मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाया, यूजर डिफाइन है। कुछ प्री डिफाइन क्लासेस भी है, इनपुट स्ट्रीम रीडर, इनपुट फाइल, इनपुट आउटपुट, दीज आर द प्री डिफाइंड क्लासेस। उसका भी ऑब्जेक्ट बनाया जाता है क्योंकि
उसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है और ये फंक्शन हमको वैरायटी ऑफ वर्क करने के लिए मदद करेगा. So that's why for closing that open resource, वो ऑब्जेक्ट जो हम बनाते हैं उसको क्लोज करके फिर हम उसी ऑब्जेक्ट को फिर से दोबारा जरूरत हमको पड़ेगा. लेकिन पहले इसको पहला काम को खत्म करना पड़ेगा. पहला काम अगर खत्म करेगा तभी जाकर दोबारा वो यूज हो पाएगा. तो ये जो ओपन रिसोर्स है उसको क्लोज करने के लिए हम फाइनली ब्लॉक यूज करते हैं. तो फाइनली ब्लॉक इज अ स्टेटमेंट वेयर द एक्सेप्शन इज arises, it is execute. If your exception is not arises, then also it is execute. अगर आपका एक्सेप्शन आएगा तभी एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्शन नहीं आएगा तभी एग्जीक्यूट होगा. लेकिन ये जो फाइनली ब्लॉक में क्या होता है ना, ये जो ओपन रिसोर्स है, जो प्री डिफाइंड क्लास का ऑब्जेक्ट, उसको क्लोज करने के लिए ये यूज किया जाता है. क्लियर? यस सर. देन ट्राई विथ रिसोर्स स्टेटमेंट. ये क्या आ गया ट्राई विथ रिसोर्स? तो फाइनली में एक प्रॉब्लम है. सपोज मेरा प्रोग्राम में अगर 5 ठो प्री डिफाइंड क्लास ऑब्जेक्ट है, 5 ठो प्री डिफाइंड क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्लोज करने के लिए मुझे 5 बार फाइनली लिखना पड़ेगा. ट्राई कैच फाइनली तो कितना लंबा हो रहा है? जितना क्लास ऑब्जेक्ट उतने बार फाइनली ऑब्जेक्ट फाइनली ब्लॉक हम यूज करेंगे. फाइनली. तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके मेरा प्रोग्राम कोड को लेंथी कर देगा. तो बेसिकली हम इसको क्यों यूज करते हैं ना, प्री डिफाइंड क्लास का ऑब्जेक्ट क्लोज करने के लिए यूज करते हैं. सपोज यहाँ पर फाइल एक ऑब्जेक्ट है, फाइल क्लास, फाइल f इक्वल्स टू न्यू फाइल. तो ये जो f ऑब्जेक्ट है, f है, उसको क्लोज करने के लिए यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा f डॉट क्लोज, ये वाला यूज किया जाएगा. सिमिलर वे और कुछ प्री डिफाइंड क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, उसको हम यूज करेंगे क्लोज मेथड. तो ये क्या बोलता है ट्राई विद रिसोर्स स्टेटमेंट? तो आपको ये बार बार ये जो फाइनली ब्लॉक है उसको मत लिखो, हमको नहीं चाहिए इसको. आप ऑटोमेटिक ट्राई विथ ब्रैकेट पैरेंथेसिस डाल दो. फाइल i इक्वल्स टू न्यू फाइल ए अगर हम बना देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट है ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है और ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय भी हो जाता है. इट इज क्रिएट ऑटोमेटिकली and destroyed also automatically. क्लियर हुए एक्चुअली क्या काम है? सर एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे फाइल वाला. हाँ देखो, ये अगर हम नहीं लिखेंगे तो ट्राई कैच, यहाँ पर हम ये जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं इसको फिर से दोबारा एक्टिव करने के लिए यहाँ पर क्लोज लिखा जाएगा, f डॉट क्लोज. फिर से और कोई ऑब्जेक्ट है
तो फिर से उसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे। सपोज और कोई क्लास का ऑब्जेक्ट है, ओके। तो ये जो प्री डिफाइंड क्लास ऑब्जेक्ट है उसको क्लोज करने के लिए हम फाइनली ब्लॉक यूज कर रहे हैं। तो ट्राई विथ रिसोर्स का क्या कर रहा है ना, ये बोल रहा है आप इतना फाइनली अगर लिखोगे तो आपका प्रोग्राम लेंथी हो जाएगा, तो आप क्या करो ना, ट्राई विथ पैरेंथेसिस डालो, ट्राई विथ ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चेंजेस करना है कर दो। क्लियर? यस सर। तो अगर एज वाला चीज अगर हम इधर डालेंगे तो यहाँ पर एक फाइनली क्लोज हो जाएगा। फिर और एक ऑब्जेक्ट डालेंगे और कुछ क्लास का, तो अगेन वो फाइनली भी चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा ना, आपका प्रोग्राम का जो कोड है वो वेल मैनेज्ड रहेगा। ये हो गया ट्राई विथ रिसोर्स स्टेटमेंट। Okay. Okay, it is all about try with resource. Okay, ठीक है। तो नेक्स्ट कल का क्लास में हम पढ़ेंगे उसका आगे ट्राई विथ रिसोर्स का क्या काम है और चेक असर्शन, उसके बाद आपको प्रोग्राम दिखाएंगे। ओके, टुमारो। यस सर। सर मैं बोल रहा था कि जो भी हम पढ़ रहे हैं सर इसको मतलब प्रैक्टिस कैसे करूँ सर, मतलब मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो भी हैं फिर जैसे से दूंगा टॉपिक आपको। पढ़ा हाँ, इसके। फिर से हाँ एक्सेप्शन का आपका जो प्रोग्राम है उसको मैं दूंगा अभी। हाँ। ओके। अच्छा हाँ, तो कल हम जो ठीक है सर। पढ़ाएंगे उसके लेकिन बाद। पीछे जो इनम इनम वाले पढ़े इंटरफेस पढ़े तो मैं सोचा उससे भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँ क्योंकि उसको प्रैक्टिस होगा तभी हाँ, मैं होगा। उसका क्वेश्चन भेज दूंगा आपको। ओके। ओके सर। ठीक है। सर वो इंटरफेस और इनम वाला वो वीडियो होगा तो भेज दीजिए ना सर, रिवाइज कर हाँ लूँ हाँ, मैं कुछ नहीं दिया हूँ, मैं रिकॉर्डिंग। उसको दे दूंगा। हाँ ओके थैंक यू सर।